वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निदाय शिल प्रभुपाद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कौन श्लोकाचे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 5। तो हम 1 से 4 बोलेंगे और 5 बार रिसाइट करेंगे सब मिलके। श्री शुकवाच, अब बोलने का नहीं, 5वां हम बोलेंगे एक साथ। अत सर्वगुणपेत काला परमशोभन हरे एवा जन जन्मार्क्षम संतर्क्ष गृहतारकम दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोदु गणोदयम महिमंगल भूयष्ट पुरग्राम व्रजकर नदिया प्रसन्न शलिला हृदा जलरुषिय द्विजाली कुल सन्नाद स्तवकावन राजस्य ववौ वायु सुख स्पर्श पुण्यगंधवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां संतस्तत्र समिन्दता मनांसि आसन प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभय समम्। Somebody can recite. मानांसि आसन प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहम् जयमाने जय तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभय समम्। मेरे पास हिंदी किताब नहीं है, तो अंग्रेजी में मैं तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में बात करूंगा। चलेगा? ट्रांसलेशन। Thereafter, at the auspicious time for the appearance of Lord, the entire universe were surcharged with all the qualities of goodness, beauty and peace. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashwini. The sun, the moon,
and all other stars and planets were very peaceful. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. Decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, the earth seemed all auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast reservoirs full of lilies and lotus were extraordinarily beautiful. In trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voice for the sake of the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers. And when Brahmanas engaging in ritualistic ceremonies ignited their fires according to Vedic principle, the fire burned steadily, undisturbed by the breeze. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Person Godhead, was about to appear, the saints and Brahmanas who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men felt peace within the core of their hearts, and kettle drums simultaneously vibrated from the upper planetary systems. Purport. In the Bhagavad Gita, the Lord says that his birth and activities are all transcendental, and that one who factually understands them is immediately eligible to be transferred to the spiritual world. The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the previous chapter. He appears out of his own sweet pleasure. When time was mature for appearance of Lord and the constellation became very auspicious, the astrological influence of the constellation known as Rohini was also predominant, because this constellation is considered very auspicious. Rohini is under the direct supervision of Brahma, who is born of Vishnu, and it appears at the birth of Lord Vishnu, who is in fact is birthless. According to astrological calculations, beside the proper situation of stars, there are auspicious and inauspicious moments due to the different situations of different planetary systems. At the time of Krishna's birth, the planetary systems were automatically adjusted so that everything became auspicious. At that time, in all directions, east, west, north, south, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. Auspicious stars were visible in the sky and on the surface of the earth. In all towns and villages and pasturing grounds, and within the mind of everyone, there were signs of good fortune. The rivers were flowing full of water, and the lakes were beautifully decorated with lotus flowers. The forests were full of beautiful birds and peacocks, and all the birds within the forest began to sing with sweet voices, and peacocks began to dance with their concerts. The wind blew very pleasantly, carrying the aroma of different flowers and greatly pleasing the sense of touch. At home, the Brahmanas who were accustomed to offering sacrifice in the fire found their homes very pleasant for offering. Because of disturbance created by the demonic kings, the sacrificial fire had been almost stopped in the houses of Brahmanas, but now they could find the opportunity to start the fire peacefully. Being forbidden to offer sacrifice, Brahmana had been very distressed in mind, intelligence, and activities. But just at the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy, because they could hear loud vibrations in the sky of transcendent sounds proclaiming the appearance of Supreme Person of Godhead. On occasion of Krishna's birth, seasonal changes took place throughout the entire universe. Krishna was born during the month of September, yet it appeared like springtime. The atmosphere, however, was very cool, although not chilly, and the rivers and reservoirs appeared just like they would in Sharat, the fall. The lotus and lilies blossomed during day, but although Krishna appeared at 12 o'clock midnight, the lilies and lotuses blossomed in bloom. Thus, the wind blowing at that time was full of fragrance. Because of Kamsa's disturbances, the Vedic ritual ceremonies had almost stopped. Brahmanas, the saintly person, could not execute the Vedic rituals with peaceful minds, but now the Brahmanas were very pleased to perform their daily ritualistic ceremonies undisturbed. The business of Asuras is to disturb the Suras, the devotees and Brahmanas. But at time of Krishna's appearance, these devotees and Brahmanas were undisturbed. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashanta Deshtarine Vancha Kalpadurvesya Kripa Sindhubhyevacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakturinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, आज मुझे इस्कॉन दुर्गापुर में रहने का मौका मिल रहा है और यहाँ थोड़ा कृष्ण कथा बोलने का भी मौका मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अवतारी चंद्र प्रभु को। अवतारी चंद्र प्रभु बहुत ही डायनेमिक और एंथुजियास्टिक लीडर है। मैं जब भी देखता हूँ हमेशा एक्टिविटीज़, अलग अलग कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़ और प्रचार की एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। मैं आया था 2018 में इधर आनंद मोहनपुर के साथ डिवोटी केयर कोर्स कुछ दिन के लिए किए थे और तब भी मैं देखा था कि बहुत सुंदर से प्रचार चल रहा था। और मैं हमेशा मैसेजेस में देखता हूँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फेस्टिवल्स एंड now रथ यात्रा आ रहा है। सो वेरी हैप्पी टू सी वंडरफुल डेवलपमेंट्स हियर एट इस्कॉन दुर्गापुर। और भक्त लोग भी बताते रहते, हमेशा आते जाते रहते दुर्गापुर से, अलग अलग भक्त न्यू टाउन में। हमारे तुहिन प्रभु ब्रह्मचारी है, दुर्गापुर के हैं। तुहिन एक ब्रह्मचारी है, वो दुर्गापुर से। तो उनका कल एक्सीडेंट हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए इमरजेंसी में। तो फ़ोन किए कि शायद मैं गुज़र जाऊंगा, तो हम सोचा आप जाएंगे नहीं, मतलब हम आएंगे तो हम आए देखने के लिए। अभी थोड़ा उनका तबीयत इम्प्रूव हो रहा है। और इधर आयन प्रभु, चंद्रमुख केशव प्रभु और सब बाकी भक्तों के भी फैमिलीज़ और ये कुछ है, तो हमेशा इधर सा खबर आता रहता है कैसे इधर अच्छा प्रचार चल रहा है और भक्त लोग बहुत उनको प्रेरणा मिलता है इधर आके। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी कि बहुत साल के बाद के न प्रकार है ना मुझे इधर आने का मौका मिला। और ना आई एम सो हैप्पी टू सी प्रेमानंद चैतन्य प्रभु हियर। हम एक साथ रहते थे बहुत सालों के बाद उनका भी दर्शन और बाकी भक्तों का भी दर्शन हो रहा है। और रविशंकर प्रभु सेम नाम है, प्रभु जी भी बहुत साल सेवा किए कलकत्ता में, वो भी हैं। तो सबको देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और मेरे साथ निमायन प्रभु आए हैं और उनके दोस्त भी इधर है, हिमांशु प्रभु और मेरे साथ और सुभानंद प्रभु भी आए हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड, पूरा श्रीमद् भागवतम कृष्ण का से कम फर्स्ट सेकंड कैंटोज आर कंसिडर्ड विद लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। भगवान के चरण कमल है पहले और दूसरे स्कंद, 10वां स्कंद के स्माइलिंग फेस ऑफ लॉर्ड। तो ये दशम स्कंद के 13 अध्याय में अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। और इधर आज के 5 श्लोक में बताया है कि कैसे भगवान आते हैं तो सब कुछ कैसे मंगलमय हो जाता है, सब कुछ ऑस्पिशियस, सब कुछ प्रॉस्परस होता है। तो हम जस्ट रिपीट करेंगे क्या क्या लिखा है इधर। तो अंग्रेज़ी में हमने पढ़ा, तो हिंदी में उसका थोड़ा देख लेंगे। जब भगवान आए तो पूरा विश्व में सत्वगुण फैला गया, सौंदर्य और शांति। भगवान के आने से क्या होता है? सत्वगुण, सौंदर्य और शांति का प्रसार होता है।
रोहिणी नक्षत्र था और सूर्य चंद्र सारे तारा एकदम शांत थे। सब प्लैनेट्स वेर ऑस्पिशियस एंड प्लीजिंग और बहुत सुंदर। सब गांव, शहर, नगर, पैक्चरिंग ग्राउंड सब ऑस्पिशियस थे। नदी में सुंदर पानी बह रहा था और सब पुकुर में सुंदर सुंदर लिली, कमल के फूल उगे थे। हालांकि भगवान रात में आविर्भूत हुए, रात में तो कमल ये हो जाता है, लेकिन भगवान आए तो खुल गए और सुंदर उनका फ्रैग्रेंस सब जगह फैलने लगा। बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, कुकूज एंड बीज स्टार्टेड सिंगिंग, जो बम्बल बी वो भी गाने लगे और मोर जो है वो नाचने लगे। सब जो फ्लावर्स का गंध, सुगंध सब जगह फैलने लगा। और हालांकि उस समय कंस का राज्य था तो सब ब्राह्मण त्रस्त थे, लेकिन अचानक ब्राह्मण का मन भी प्रफुल्लित हो गया और सब लोग आनंदित हो गए। तो ये भगवान जब भी आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है, सब प्रॉस्परस हो जाता है। आजकल हम देखते हैं सब लोग, सबको क्या चाहिए, प्रॉस्परिटी। प्रॉस्परिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? निमानपुर, प्रॉस्परिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रॉस्परिटी, सब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग, विकास, सब लोग विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको विकास चाहिए। लेकिन असली विकास कितना भी भौतिक प्रयास आप करो नहीं होगा। सबका साथ भी रहेगा तभी विकास नहीं होगा, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं रहेगा। और जब भगवान आविर्भूत हो जाते तो सबका विकास हो जाता है एक साथ। किसी का भी साथ नहीं रहेगा तो एक साथ सबका विकास हो जाता है जब भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। और हमारा बड़ा भाग्य है कि इस कलयुग में भगवान आए हैं। किस रूप में आए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, छन्ना अवतार है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको और भी अवतारों से जुड़ा दिया है। कौन से और अवतार? कलयुग में हरिनाम, एक नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामनि। ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम और भगवान में अंतर नहीं। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान आविर्भूत होते हैं। सो कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आविर्भूत हुए। और एक भगवान का अवतार इस कलयुग में कौन सा स्पेशल अवतार है? भागवतम। हम देखते सब ऋषिगण सुद गोस्वामी पूछते, भगवान तो कृष्ण अभी धरातल से निकल गए, भगवत धाम चले गए, तो अभी कैसे सबको दिशा मिलेगा? तो बोले भगवान भगवत धाम चले गए, लेकिन एक अवतार में चले गए, लेकिन दूसरे अवतार में आविर्भूत हुए। भागवतम के रूप में कलयुग में भगवान आए हैं। और वो कलयुग में जो कि अंधेरा का समय है उसमें प्रकाश देगा, ये भागवतम। तो भगवान नाम के रूप में आए हैं कलयुग में, भागवतम के रूप में आए और अर्च विग्रह के रूप में आए हैं। सो जहाँ भी भगवान के ये 3 अवतार है वहाँ हमेशा ऑस्पिशियसनेस रह सकता है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नाम एव केवलम। ये जो हरिनाम है, मधुरम मधुरेभ्यो, सब मधुर चीज़ में सबसे मधुर है, रसगुल्ला से भी मधुर है। और मंगलम मंगल, सब
मंगल चीज़ में सबसे मंगलमय है और सब पावन चीज़ में सबसे पावन है। कितना भी कोई व्यक्ति गंदा हो उसको भी पवित्र बना सकते हैं हरि नाम। और ये श्रीमद् भागवतम जो है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रसार किया सब जगह और सबको आदेश दिया, हमारा गया गुरु है तारे देश पृथ्वी दया चेत नगराधिगण सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। नाम का प्रचार होगा पूरे, क्योंकि ये नाम क्या कर सकता है, सबको मंगलमय बना सकता है। और ये नाम का महिमा, नाम का ये सब समझने के लिए अगर हम भागवतम समझेंगे तो और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हम देखते भागवतम जो है भगवान का ही अवतार है और जो भी कोई भागवतम सुन लेता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, रोज़ भागवतम सुनने से क्या कहते हैं, अभद्र सब चले जाएंगे और ऑल ऑस्पिशियस ना आ सकता है। अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्य अजनंतु विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। पूरे जितने भी अनर्थ है, जितने भी इनऑस्पिशियसनेस है, जितने भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम दुनिया के, सब चले जा सकते हैं। कैसे? भक्ति योग करने से, भगवान का भक्ति करने से। और ये लोग जानते नहीं है, इसलिए व्यासदेव ने ये श्रीमद् भागवतम लिखा है। अरे श्रीमद् भागवतम यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपह। जस्ट ये भागवतम श्रवण करने से ये दुनिया का जितना भी शोक है, मोह है, भय चला जाएगा। हम देखते हैं इस दुनिया में हमेशा लोग त्रस्त है, किस लिए? ये तीन कारण के लिए, शोक मोह भय। वो हमेशा शोक करते रहते, अरे मैं ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहते, ये होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ऐसा हमेशा पुराना बातों के लिए शोक करते हैं। और प्रेजेंट में उनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, मोह में रहते हैं। और फ्यूचर के बारे में हमेशा वो भय में रहते हैं, अरे पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में ना। लेकिन भागवतम श्रवण करने से क्या होता है, ये शोक मोह भय अपह, ये शोक मोह भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने ये भागवतम का अनुवाद किया अंग्रेज़ी में, संस्कृत का अनुवाद अंग्रेज़ी में किया। और फिर उनका इच्छा था कि ये जो भागवतम विश्व के पूरे सारे भाषाओं में अनुवादित हो, ताकि पूरे विश्व के लोग इसका फ़ायदा ले और पूरे विश्व के लोग शोक मोह भय से मुक्त हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत प्राधान्य देते थे। जब भी किताब बांटा जाता था तो प्रभुपाद को बहुत आनंद होता था, लगता था कि मैंने एक विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि विश्व में जितने दुख कष्ट है, समस्या है, ये भागवतम श्रवण करने से मुक्त हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम लिखे 3 वॉल्यूम में, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस हुआ कि अभी मैं जा सकता हूँ विदेश में प्रचार करने के लिए, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको आदेश दिया था। तो भागवतम उनके साथ रहा तो उनको पता था मेरे साथ अभी कृष्ण है, तो अभी मुझे कुछ डर नहीं है। तो फिर वो भागवतम लेके गए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। तो ये हरिनाम, ये भागवतम और ये अर्च विग्रह, ये अर्च विग्रह जो है भगवान का स्पेशल अवतार है। क्योंकि बहुत बार क्या हो सकता है, हम हमेशा हरे नाम नहीं कर सकता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा शायद भागवतम भी पढ़ नहीं सकता है, सुन नहीं सकता। कभी कभी कलयुग क्या है, लोग थोड़ा लेजी रहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता। थोड़ा आधा घंटा क्लास हुआ तो प्रभु बोलते बहुत हो गया प्रभु जी अभी, नो या थोड़ा जप कर लिया तो बोला बहुत हो गया ना। 16 माला करते करते आदमी का दम घुटने लगता है ना। तो हरिनाम बहुत अच्छा है, लेकिन कंडीशंस लोग के लिए थोड़ा ये हो जाता है। भागवतम तो बहुत ही मधुर है, सुंदर है, लेकिन फिर भी श्रवण नहीं कर, इसलिए भगवान अर्चविग्रह के रूप में आए। क्योंकि अर्चविग्रह के रूप किस लिए आए? ताकि हम सेवा कर पाए। बहुत लोग बैठ के जप नहीं करते थे,
और श्रवण नहीं कर सकते लेकिन सेवा कर सकते हैं। बहुत बार लोग आते बोलते प्रभु जी हमको सेवा दीजिए। अरे हरि नाम करो, नहीं प्रभु जी बहुत मुश्किल है, थोड़ा बैठ के सुनो, बहुत मुश्किल है। सेवा ओके प्रभु जी जो भी सेवा है नो प्रॉब्लम आई विल डू। तो ये भगवान का अर्च विग्रह का ये आविर्भाव हुआ है ताकि सबको हमको सेवा का मौका मिले। एक्चुअली भगवान का सेवा करना तो बहुत महान है, ये जीवन का उद्देश्य है, जीवन का ध्येय है। लेकिन हम अनक्वालिफाइड है, फिर भी आचार्यों के गुरुओं के कृपा से हमको अर्च विग्रह का सेवा मौका मिलता है। और अर्च विग्रह का सेवा मिलने से सब ऑस्पिशियस हो जाता है। ये भौतिक जगत में सब इनऑस्पिशियस है। इधर भौतिक जगत में कुछ भी खाएंगे तो पाप लग जाता है, हाँ या ना। लेकिन अर्च विग्रह आ गए, अभी हम कुकिंग कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या है? ऑस्पिशियस है, पूरा शुद्ध करता है, पाप में नहीं, वो शुद्ध कर लेता है। सिमिलरली ये भौतिक जगत में लक्ष्मी कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लक्ष्मी से चिंता और कष्ट ही आ जाता है। और जितना भी लक्ष्मी हम अपने खुद के ऊपर स्पेंड करते हैं या भौतिक चीज़ों के, वो भोग बंधन के लिए ये हो जाता है। लेकिन भगवान आते हैं तो भगवान के सेवा में लक्ष्मी को लगा सकते हैं, तो क्या सब ऑस्पिशियसनेस आ जाता है और सब भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अर्च विग्रह के कारण हम क्या करते हैं? हमारा तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा सकते हैं और सबको शुद्ध बना सकते हैं, सब प्यूरिफाई हो सकते हैं। हमारे जितने भी टैलेंट्स है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और 24 आवर्स हम कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं। सो हम देखते हैं मंदिर में हमेशा हियरिंग रहता है, चैंटिंग रहता है, भगवान का गुण कीर्तन रहता है, सिंगिंग, डांसिंग, फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम, फीस्ट, कलरफुल डेकोरेशन, ये सब कुछ इतना एंगेजिंग रहता है कि 24 आवर्स आदमी बिजी हो सकता है। और कितने लोग बिजी हो सकते हैं? पूरा दुनिया का हर व्यक्ति बिजी हो सकता है। मंदिर में क्या है, किसको सबको सेवा मिल सकता है। कोई सिक्योरिटी का सेवा कर सकता है, कोई झाड़ू लगा सकता है, कोई किताब बांट सकता है, कोई सब्जी कटिंग कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई फंड रेजिंग कर सकता है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, कोई कुछ पोस्टर बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है। हर एक कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का हो उसको सेवा मिल सकता है। ये बहुत बड़ा कृपा है भगवान का। तो भगवान आए, ये डीटी का सेवा नहीं, ये बहुत करुणामय भगवान, सबको सेवा में लगाते हैं। और हम आशा करते हैं कि भगवान का नाम जप करने से, भगवान का ये भागवत श्रवण करने से और डीटी का सेवा करने से धीरे धीरे क्या होगा, हृदय भी शुद्ध होगा और फिर भगवान स्वयं हमारे हृदय में भी स्थापित हो जाएंगे। सो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो फिर वी कैन एक्सपीरियंस वैकुंठ हियर ओनली। तो ये भौतिक जगत तो दुखालय है, कष्टमय है, लेकिन जब भी ये कष्ट क्यों है? हृदय में गंदगी है, काम है, क्रोध है, मोह है, मन। लेकिन हृदय से ये गंदगी निकल गया तो ये दुनिया भी वैकुंठ वृंदावन के समान लगेगा। जैसे विश्वम पूर्णम सुखायते अपने अंकल प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि विश्वम पूर्णम सुखायते। जब हृदय के गंदगी चले जाते हैं और भगवान के सेवा में हम लग जाते हैं तो क्या लगता है? ये वैकुंठ लगता है, एकदम आनंदमय जगह लगता है, सब दुख चले जाते हैं। एंड वन डेवलप्स लव फॉर गॉड, लव फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो फिर हम सबसे भी प्रेम कर सकते हैं। जब कृष्ण से प्रेम होता है, सबसे हम प्रेममय सेवा कर सकते हैं तो फिर आनंद ही आनंद। और फिर वो हम सबको ये प्रेम बांट सकते हैं प्रचार के माध्यम में। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये जो सबको बांटना प्रेम हरे नाम के द्वारा, प्रचार के द्वारा, ये क्या है? आनंदम बुद्धिवर्तनम। इसमें इतना आनंद है और वो आनंद क्या होता है? हमेशा बढ़ता ही रहता है। जितना बांटेंगे उतना और मिलेगा। आप में से कितने लोगों को अनुभव है?
प्रचार जितना करेंगे उतना ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, तो ये कष्ट अगर इंद्र तृप्ति करेंगे और खुद का कुछ ये बिजनेस करने का प्रयास, खुद को बहुत बड़ा बनने का प्रयास करें, कष्ट दुख और क्लेश ये है। लेकिन ये कृष्ण भावना बढ़ाने में मदद करेंगे, प्रचार करेंगे, दूसरों को कृष्ण भावना देंगे तो क्या है, इसमें आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है कि वन कैन फॉरगेट ऑल मिजरीज, सब दुख भूल सकते हैं। तो जब भी कोई कृष्ण को घर में लाता है, अपने जीवन में लाता है, अपने हृदय में लाता है, तो क्या हो जाता है, सब चीज़ मंगलमय हो जाता है। और फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एवरीथिंग बिकम्स ऑस्पिशियस एंड प्रॉस्परस। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है उससे, फिजिकल, इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है, फाइनेंशियल भी। बहुत बार आदमी कोई भी भक्ति में आ जाता है तो उसके बुरी आदतें चले जाते हैं, वो सिंपल लाइफ रह सकता है, तुरंत इतना पैसा बच जाता है। मैं पहले कॉलेज हॉस्टल में रहता था, हमेशा लक्ष्मी लगता था कि कम है, जितने पेरेंट्स दे रहे कम ही है ना, इतना खर्चा होता था। जैसे भक्त बन गए पूरा खर्चा बंद होटल जाना बंद, मूवी जाना बंद, ये करना बंद, और इतना पैसा बचने लगा है ना, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। और नॉट ओनली पैसा बच जाता है, लेकिन एक्चुअली नेचुरली फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी होता है। जब भी धर्म करते हैं, धर्म का बाय प्रोडक्ट है अर्थ। लेकिन दैट अर्थ शुड नॉट बी यूज फॉर काम, दैट अर्थ शुड बी यूज फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड। जब भी कोई भक्ति में आ जाता है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आपने कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा? हाथ ऊपर। तो जो भी भक्ति में आता है तो सब जगह प्रगति होता है, इंक्लूडिंग आर्थिक प्रगति भी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति नहीं, आर्थिक प्रगति भी हो जाता है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? आर्थिक प्रगति मैं देखा बहुत से लोगों के जीवन, मेरे जीवन में भी देखा। सो अगर हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं, मुझे याद है एक बार मेरे फैमिली में बहुत फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस था, लेकिन वो मेरे को कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं भक्ति में ही लगा था और ज़्यादा उसको ध्यान नहीं। लेकिन मैं देखा कि बाद में सब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चला गया। एंड तो मैं देखा कि भगवान कृपा कर लेते और फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब तरह सब ख्याल रखते हैं। नेचुरल प्रॉस्पेरिटी आता है। प्रॉपर जब अमेरिका में गए तब उधर न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में एक बहुत बड़ा 2,500-3 हज़ार एकड़ का ज़मीन मिला था, और वो माउंटेन है और हमेशा बर्फ़ रहता है उधर, और उधर कुछ उगता नहीं था और बहुत रहना भी बहुत मुश्किल है उधर। लेकिन उधर भक्त गए, मंदिर स्थापन किया, चैंटिंग डांसिंग करने लगे, अभी बहुत प्रॉस्परस हो गए वो उधर। अभी लुक, यू कैन प्लांट, यू कैन ग्रो थिंग्स एंड यू कैन। पहले जब प्रभुपाद जी को वो जगह मिला था, इट वॉज अनहैबिटेबल, यानी व्यक्ति आदमी उधर रह नहीं सकता था, ऐसा सिचुएशन था। इतना बर्फ, इतना ठंडी, इतना वो सब एटमॉस्फेयर बहुत फियर्स था, सब जो वातावरण था बहुत ही खराब था। लेकिन उधर भक्त रहने से, मंदिर बनाने से, जब कीर्तन करने से क्या हुआ, सब वातावरण बदल गया। क्योंकि ये प्रकृति भी क्या है, भगवान की ही दासी है, माया दक्षिण प्रकृति। जिधर भगवान का सेवा होता है प्रकृति भी चेंज हो जाता है। जिधर बहुत ठंडी है उधर भी थोड़ा गर्मी आ जाता है, उधर जो अनफर्टाइल लैंड है वो भी फर्टाइल हो जाता है। और प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, अगर रिसर्च, पीपल आर डूइंग रिसर्च, एक्चुअल किधर भी भक्ति करता है कोई तो नैसर्गिक भी चेंज हो जाता है, निसर्ग नेचर चेंज होता है। जिधर बारिश नहीं, बारिश आ जाता है, जिधर नो कुछ उगता नहीं उधर उगने लगता है। तो ये सब नेचुरल चेंजेस होते हैं, क्योंकि भगवान जो है प्रकृति के भी मालिक है, और भगवान को प्रसन्न करेंगे तो प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है, खुल जाती है। और हम देखते कि लोग भी प्रभुपाद के समय कितने हिप्पी लोग थे,
लेकिन भक्ति करने के बाद वो जेंटलमैनली बन गए और बहुत प्रोडक्टिव बन गए। गिरिराज महाराज बोलते हैं जब वो बॉस्टन मंदिर में गए थे पहले, एक हिपी था, कुछ कर नहीं पाता था, वो हमेशा सोता ही रहता था, लेकिन वो जस्ट मंदिर में रहने के कारण, हरिनाम करने के कारण बाद में बहुत बड़ा पंडित बन गया। बाद में वो कुशाकृत प्रभु बने, संस्कृत स्कॉलर बने, उन्होंने इतने गोस्वामी के लिटरेचर ट्रांसलेट किया। जस्ट यानी भक्ति में आने से क्या होता है, आदमी का नेचुरल टैलेंट भी आ जाता है, आदमी बहुत प्रोडक्टिव बन जाता है एंड क्वालिफाइड हो जाता है, उसके अच्छे गुण बाहर आ जाते हैं। नेचर के भी अच्छे गुण आते हैं, आदमी के भी अच्छे गुण बाहर आ जाते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अमेरिका में गया था, तो उधर देखा एक ब्रह्मचारी बहुत उत्साह से सेवा करता था, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रोग्राम अरेंज किए थे। कॉलेज में मैं गया उनके साथ अलग अलग, एंड बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है वो अमेरिकन ब्रह्मचारी है। फिर मैं उसको पूछा कि तुम कैसे भक्ति में आया, तो बोला प्रभु जी मैं स्कूल में था, सब गंदा कार्य करता था, बाद में ड्रग्स ये करता था, चारों नियम तोड़ता था, और मेरे जीवन में मैं ये सब भोग करने के कारण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। यही संसार जब होगा दुख ये नहीं होते, जितना भी ज़्यादा भोग करने का प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है, आदमी बहुत परेशान हो जाए, दुख में फंस जाता है। वो बोलो मैं इतना फंस गया क्या उसमें कि लगा कि अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, और सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैं वो बोला मैं सुसाइड ही करने वाला था। उधर क्या है, सब चार नियम तोड़ते, सब कैसे जानवर की तरह जीते, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वो बोला मैं सुसाइड करने वाला, लेकिन उस टाइम किसी ने उनको प्रभुपाद का किताब दिया, तो वो पढ़ा, फिर वो मंदिर आया, उसको अच्छा लगा और मंदिर में आने लगा। और उसके बाद वो कुछ दिन के लिए मंदिर आया और वो लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन में फिर वो जा नहीं पाया, मंदिर में रह गया, और 1 साल ऑलमोस्ट मंदिर में रहा, तो वो ब्रह्मचारी बन गया और इतना सुबह से रात तक सेवा करने लगा, 16 माला जप करने लगा। अभी वो फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो उसका इच्छा भी नहीं हुआ बाहर जाने का, और बोला उससे तब से मैं मंदिर में रह रहा हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है। अभी मेरा जीवन इतना दुखमय कष्टमय था, लेकिन अभी इतना आनंदमय हो रहा है। सो हम देखते ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के समय हिपीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अभी भी लोग ना कोई भी भक्ति लेता है तो उसका नेचुरल प्रॉस्पेरिटी होता है, अच्छे गुण बाहर आते हैं, आदमी आनंदित हो जाता है। सिमिल में गया और एक मंदिर में उधर माता जी टेम्पल प्रेसिडेंट है और एक माता जी टेम्पल कमांडर है। तो और बाकी प्रभुपाद के बहुत शिष्य है उधर। तो मैं देखा मंगल आरती में बहुत भक्त लोग आते, प्रभुपाद के शिष्य भी आते हैं ना। तो टेम्पल कमांडर माता जी थी, तो वो बता रही थी कैसे उसका जीवन बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शसनेस कितना हॉरिबल था। जब छोटी सी थी शी वॉज एब्यूज, उसके बाद वो बड़ी जीवन कष्टमय था, शादी हुआ उसमें भी उनको बहुत तकलीफ हुआ, उनका डाइवोर्स हो गया और वो ड्रग्स बिग्स लेने लगी, पूरा वो जीवन बर्बाद हो गया था। लेकिन वो ऐसे भक्तों ने उनको एक बार मंदिर में बुलाया और फिर मंदिर में उनको बहुत अच्छा लगा कीर्तन वगैरह, और भक्तों ने इतना उनको प्रसाद किताब ये देते देते इतना उनको अच्छा लगने लगा, जब करने लगे। अभी वो बहुत अच्छे भक्त बन गए, सुबह से रात तक सेवा करते हैं। और अमेरिकन मंदिरों में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है और ब्रह्मचारिणी आश्रम रहता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती हैं और बहुत सेवा करते हैं। आपको देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि उनको कभी कुछ प्रॉब्लम था। शी इज़ सो डायनेमिक लेडी नो। तो ये कृष्ण भावना मत ऐसा है कि कोई भी कृष्ण भावना लेता है तो एकदम सब चेंज हो जाता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता है, पीपल बिकम वेरी ब्यूटीफुल, उनका सब बीमारी भी चला जाता है, उनका सब ना फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, प्रकृति नेचुरल एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। ये जैसे कृष्ण आते हैं इधर हम देख रहे हैं कि सब कैसे परिवर्तित हुआ, वैसे हम देखते हैं कि सब परिवर्तित होता है। एंड वी कैन प्रैक्टिकली सी, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली, जो भी भागवतम में है आज हम देख सकते। कभी भी किधर भी
भक्ति करेंगे तो उस जगह नेचुरल समृद्धि आएगा, नेचुरल मंगलमय हो जाएगा। आजकल इतना पापमय कृत्य हो रहा है, इतने लोग गायों का हत्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग एबॉर्शन, किलिंग, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। इसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। आजकल इतना वॉर, युद्ध विद्ध सब जगह चल रहा है, क्यों है? वो पाप का कारण है। लेकिन अगर हम प्रचार करेंगे, हरे नाम का प्रचार करेंगे, अलग अलग जगह मंदिर स्थापन करेंगे, भक्ति स्प्रेड करेंगे, तो उससे क्या होगा? ये सब पाप में नष्ट हो सकता है, सब में शांति आ सकता है और सब समृद्ध हो सकता है। तो आजकल के ज़माने में कलयुग जितना बढ़ रहा है उतना ये हमारा ये संकीर्तन मूवमेंट का बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी 1971 में जब पाकिस्तान वॉर हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान, हमको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले हमको क्या करना चाहिए? हरे नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्ता। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आविर्भूत होंगे, भगवान का ये भागवतम श्रवण करेंगे, भगवान का अर्च विग्रह सेवा करेंगे तो सब ऑस्पिशियसनेस आएगा। तो श्रील प्रभुपाद के और गुरु परंपरा की कृपा से हमको ये सब प्राप्त हुआ है। हमने भी देखा है हमारे जीवन में कितना ऑस्पिशियसनेस आया है, मंगलमय कैसा अपना जीवन हुआ है। और हमको क्या करना है? अभी दूसरों को भी मदद करना है। जब फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक अभी रथ यात्रा आता है, तो रथ यात्रा में बहुत लोग जुड़ सकते हैं। हम देख कलकत्ता में सबसे ज़्यादा प्रचार पूरे साल का होता है रथ यात्रा में, और सबसे ज़्यादा लोगों को सेवा का मौका मिलता है। तो ये सेवा का मौका हमको लेना चाहिए, हमेशा हमको पूछना चाहिए। भौतिकवादी लोग हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मी, और मैं कैसा भोग कर सकता हूँ। भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि इस स्थिति में मैं कैसा भोग कर सकता हूँ और इस स्थिति में मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसके कारण वो हमेशा दुखी रहते हैं। भक्त को हम हमेशा सोचना चाहिए अभी ये स्थिति आ रहा है, इसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, और ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। जितना हम सेवा करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे, जितना हम भोग करने का प्रयास करेंगे उतना दुख में रहेंगे। तो हमेशा हमको हर स्थिति, अलग अलग स्थिति हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में सोचना चाहिए हाउ आई मे बी ऑफ सर्विस, मैं इस सिचुएशन में कैसे सेवा कर सकता हूँ। और जब सेवा में समस्या आ जाता है तो हमको सोचना चाहिए कि अरे मैं इतना सेवा करो, ये तकलीफ क्यों आ रहा है। सोचना चाहिए अरे कृष्ण कुछ तो सिखा रहा है मुझे, इस सिचुएशन में क्या सीख सकता हूँ, तो कैसे मैं अच्छा बन सकता हूँ और अच्छा सेवा कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज, हर सिचुएशन में हमको सोचना चाहिए कि कृष्ण हमको क्या सिखा रहे हैं, बिकॉज सब कुछ तो कृष्ण के कंट्रोल में ही चल रहा है। और हमको समझना चाहिए, प्रभुपाद जी हमको बोलते कि हमको कितना समय तक कृष्ण भावनामृत रहना है, 24 आवर्स। तो हमेशा पूछना चाहिए हम खुद को हमारा अभी ध्यान किधर है, इस समय में मेरा ध्यान किधर है। अभी मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरा ध्यान क्लास में है और किधर है ना। अगर जो चीज़ कर रहे उसमें ध्यान है तो इसका मतलब क्या होगा, हम कृष्ण भावनामृत है। अगर जप कर रहे तो ध्यान जप में रहना चाहिए, अगर क्लास सुन रहे क्लास में होना चाहिए, सेवा कर रहे सेवा में होना चाहिए। तो अगर वेर एवर आवर अटेंशन इज वी आर देयर, तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि हमेशा हम ये न कि प्रकार कृष्ण की सेवा में और कृष्ण के संबंधित कार्य में जुड़े रहें। तो ऐसा रहेंगे तो क्या होगा, हमेशा हम कृष्ण के साथ रहेंगे, और कृष्ण के साथ रहेंगे तो सब ऑस्पिशियसनेस रहेगा, समृद्धि रहेगा और आनंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।